Hello students, welcome to this lecture of topic vector for MST CET, and in this lecture we are again going to solve the problems on scalar product, that is the dot product. So this is the lecture number 9. इसके पहले का lecture में भी हमने problems देखे थे scalar product, that is the dot product. So in the last lecture we have solved 10 problems. Now in this lecture we will solve the problems from number 11 to 20. फिर से 10 प्रॉब्लम इसी पॉइंट पे यानी स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट पे हम सॉल्व करेंगे. सो सी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 11, and in the last lecture we have solved the 10 problems. That was the lecture number 8 and this is the lecture number 9 on the same point, problems on scalar product. So see the problem number 11 on the board. So in this question, problem number 11, I have given a regular hexagon. A regular hexagon is given A, B, C, D, E, F. So this is the regular hexagon A, B, C, D, E, F, and you have to find the dot product of vector AB and AF, AB dot AF. So this is the vector AB and this is the vector AF, and you have to find AF vector dot AB vector. So the basic definition of dot product of two vectors is A vector dot B vector is AB into cos of theta. This is vector A, this is vector B, and angle between them is theta. A and B are the magnitudes of the vectors A and B. Theta is the angle between A and B. So here we have to find the dot product of AB vector and AF vector. So AF dot AB या AB dot AF पूछा है, AB सेम ही है, AB dot AF, both are same. So here is the magnitude of AB vector, A into mod of B, that is mod of AF into cos of angle between the vector AB and AF. So each interior angle of a regular hexagon is of 120 degree. Each interior angle of regular hexagon is 120 degree, so it is cos of 120. So cos of 120 is minus 1 by 2. So it is mod of AB into, up this is a regular hexagon, so each side has equal length. So mod of AF can be written as mod of AB. So note this point, these are the scalars. AB की और AF की लेंथ सेम है, तो हम mod of AF को mod of AB लिख सकते हैं. So it is minus 1 by 2 into mod of AF square, या इसका आंसर ये भी हो सकता था, माइनस 1 by 2 इंटू मॉड ऑफ AF स्क्वायर भी लिख सकते थे. अगर मैं AB को AF लिखता था तो AF इंटू AF स्क्वायर हो जाता था. लेकिन मैं अगर ऑप्शन चेक करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1 by 2 BC स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इज़ माइनस 1 by 2 BC स्क्वायर, थर्ड वन इज़ 1 by 2 AC स्क्वायर एंड लास्ट वन इज़ माइनस 1 by 2 AC स्क्वायर. तो AB इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो आप किसी भी साइड को इसमें लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट AB स्क्वायर एज BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर, किसी भी साइड को आप इनसे मेंशन कर सकते हो. सो इट इज़ माइनस 1 by 2, तो ऑप्शन में BC स्क्वायर है, सो इट इज़ BC स्क्वायर बिकॉज AB एंड BC हैज़ सेम लेंथ. लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC. Again here AC square is also given, but AC is not the side of the regular hexagon. So the correct answer is minus 1 by 2 BC square, and this is the option B. Second option is correct, and this was the problem number 11. And now see the next question number 12. Next question number 12. See the question number 12 on the board.
This question is very simple and this is also a standard result of डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सो हियर R bar is any vector, R is any vector, then R dot I into I plus R dot J into J plus R dot K into K, ये क्या वेक्टर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए. R is any vector, R dot I vector into I vector plus R vector dot J vector into J vector plus R dot K vector into K vector. ये स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट. सो K into I, K is a स्केलर. तो इस तरह से स्केलर है. I J K R यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो जब भी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है आर बार इज एनी वेक्टर, तो ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो हम इसमें आर वेक्टर कंसिडर करते हैं. लेट आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर कंसिडर करेंगे. एंड नाउ वी विल फाइंड दिस डॉट प्रोडक्ट आर डॉट आई. सो आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई वेक्टर. So A1 A2 dot product A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. So this I vector can be written as, I am finding this dot product, I plus 0 J plus 0 K. So A1 A2 x into 1 x plus B1 B2 y into 0 is 0 plus C1 C2 z into 0 is 0. So R dot I is x. Similarly R dot J will be equal to y and R vector dot K vector will be equal to Z. So if I substitute the values of all these three dot products in this equation, so R dot I is x into this I, R dot J into y into this J plus R dot K is Z into this K vector. So this vector is again a R vector. So the answer to this question is R vector, and this is in the second option. So this is the question number 12, and now see the next question number 13. So in today's lecture we are going to solve important problems on the dot product, that is the scalar product. All the problems are very important, इसलिए मैंने 2 lectures conduct किए हैं to solve the important problems on the dot product, that is the scalar product on the for the MST CT. So the next question number 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए. इफ द वेक्टर 3 वेक्टर दिए हैं I माइनस जे प्लस 2 के बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें देखने की. सो आई हैव दिस 3 वेक्टर्स. ए वेक्टर इज I माइनस जे प्लस 2 के, B vector is 2I plus 4J plus K, and vector C is given as lambda I plus J plus mu K. So all these 3 vectors are mutually perpendicular, यानी A is perpendicular to B, B is perpendicular to C and A is perpendicular to C, and we have to find the values of these unknowns lambda and mu. सो हियर ए इज़ ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू बी है, तो उससे हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. सो लेट फर्स्ट ए इज परपेंडिकुलर टू सी. ए अगर सी को परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी 0 मिलेगा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर सी 0, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट देखिए ए और सी का, A1 A2 लैम्डा इंटू 1 लैम्डा प्लस B1 B2 1 इंटू -1 इज -1 प्लस C1 C2 2 इंटू म्यू इक्वल टू 0. तो मेरा इक्वेशन बनेगा लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. अगेन B is also perpendicular to C. All the vectors are mutually perpendicular. So taking B perpendicular to C, therefore dot product of B and C is also equal to 0. So A1 A2 is
2 lambda plus b1 b2 plus 4 plus c1 c2 mu equal to 0. So I have this equation 2 lambda plus mu equal to -4, and by solving these two equations simultaneously you will get the value of lambda. So if you solve these equations simultaneously, you will get lambda equal to -3 and mu equal to 2. Again we will verify or check whether these values of lambda and mu are satisfying these equations. Lambda is -3 plus 4, so 4 minus 3 is 1, and this is -6 plus 2 is -4. So these values of lambda and mu are correct, so option A is correct. So this was the question number 13. Now see the next question number 14. See on the board, problems are very best and इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको CET एग्ज़ाम में दिखाई देंगे. So see the next question number 14. So in the question number 14 I have given the vector A, vector B, and it is said that the angle between A and B is greater than 90 degree. So we have to find the lambda. Lambda किस range में है? So we have to find the value range of lambda. So here A vector दिया है lambda I minus 7j plus 3k, and vector B is lambda I plus j plus 2 lambda k. Okay, so angle between these two vectors A and B is greater than 90. So let angle between A vector and B vector is theta. तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा है कि डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है. सो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इट इज़ गिवन दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो थीटा इज ऑब्ट्यूज. थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा. तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? सो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट? ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड, सो दीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, ऑब्ट्यूज है, तो कॉस थीटा निगेटिव होगा. सो कॉस थीटा अगर निगेटिव होगा तो ये पूरी टर्म निगेटिव आएगी. सो ए डॉट बी इज निगेटिव, दैट इज लेस देन 0. राइट. अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा. इन दैट केस ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव. सो नोट दिस पॉइंट्स. इफ थीटा इज एक्यूट, डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, dot product is negative. So here dot product is negative. So taking dot product of vector A and vector B, a1 a2 lambda into lambda, lambda square plus b1 b2 minus 7 plus c1 c2 plus 6 lambda is less than 0. So ये बनेगा lambda square plus 6 lambda minus 7 is less than 0. तो इसके फैक्टर्स मिलेंगे हमें. lambda plus 7 into lambda minus 1 minus 7 plus 6 is less than 0. तो अब लैम्डा किस रेंज में होगा? सो इफ वी टेक दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, लैम्डा माइनस 1 कब 0 होगा? एट लैम्डा इक्वल टू 1. लैम्डा प्लस 7 कब 0 होगा? एट लैम्डा इक्वल टू माइनस 7. सो वी हैव दिस 3 पार्ट्स. तो हम इसी किसी का एक लैम्डा -1 और 7 का किसी एक नंबर से इसको चेक करते हैं. सपोज आई टेक 0 इज इन बिटवीन -1 एंड 7. 0 से चेक करता हूँ तो 7 आएगा, -1 आएगा. 7 इंटू -1 -1 दैट इज़ द लेस देन 0. किसी भी एक नंबर को ले लीजिए, या -5 लेके देखिए या -1 लेके देखिए. सो 7 - 1 इज 6, -1 -2. सो लैम्डा इज इन बिटवीन -1 to 7. क्योंकि लैम्डा की इस इनइक्वालिटी को -7 और 1 के नंबर ही सेटिस्फाई करते हैं. ए पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, ए पार्ट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -7.
So this is the correct answer to this question, and this is in the option A. So first answer is correct to this question number 14. Now we will solve the next question number 15. See the next 15, and in this question number 15 we have given the orthogonal vectors. टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर यानी परपेंडिकुलर है, तो हमें लोकस पूछा है पॉइंट x, y का. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द वेक्टर्स आर I माइनस 2xj माइनस 3yk. सो लेट दिस इज द वेक्टर A and let second vector is B and this vector is I plus 3xj plus 2yk. Okay, so it is said that these vectors are orthogonal to each other यानी perpendicular है. orthogonal means perpendicular, तो perpendicular की कंडीशन यूज़ करके हमें लोकस ऑफ पॉइंट x, y मिल जाएगा. सो इट इज़ गिवन दैट द वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 into 1 1 माइनस 6x² b1 b2 प्लस c1 c2 माइनस 6y² इक्वल टू 0. तो ये बनेगा 6x² प्लस 6y² इक्वल टू 1. तो ये किसका इक्वेशन है, x² प्लस y² इक्वल टू 1/6. तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट x, y and this equation is in the form of x² plus y² equal to a², and this is the equation of circle whose center is at origin having radius a. So locus of this point is a circle. So circle is in first option A, and this was the question number 15. Now we will solve the next question number 16. See the 16, and in this question number 16 we have a vector, b vector, and it is given as mod of a plus b equal to mod a plus mod b, then lambda equals to. So this is the question number 16. So in this question vector a is I plus lambda j plus k, and vector b is I plus j plus k. It is given that mod of vector a plus b equal to mod a plus mod b. तो हमें लैम्डा पूछा है. इसी कंडीशन से समझ में आता है कि मगर mod of a plus b equal to mod a plus mod b है, so it is clear that these vectors are collinear in the same direction. See, if यहाँ से यहाँ तक अगर a वेक्टर है और सेम डायरेक्शन में अगर b वेक्टर है, सो मॉड a प्लस मॉड b होगा मॉड ऑफ a प्लस b. सो दिस हैपन इन दिस केस. इट मीन्स वेक्टर a एंड b आर व्हाट, कोलिनियर. ये कब होगा, दिस इज पॉसिबल. देखिए फिर से मॉड a प्लस मॉड b, ये मॉड a होगा इसकी लेंथ और दिस इज द मॉड b यानी इसकी लेंथ. सो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर. सो पी आर इज मॉड ऑफ a प्लस b, पी आर इज मॉड ऑफ a प्लस बी. तो इसमें पॉइंट्स यानी दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. तो अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होंगे. कंपोनेंट्स ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स आर इन प्रोपोर्शन. तो मेरा आंसर बनेगा 1/1 इक्वल टू लैम्डा बाय 1 इक्वल टू 1/1. तो आंसर है लैम्डा इक्वल टू. ओके, सो दिस इज़ वन मेथड. अगर ये अपने ध्यान में आता है कि समझ में आता है इन द फर्स्ट साइड दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर. अगर आपके ध्यान में नहीं आता है तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द गिवन कंडीशन. तो इसको हम स्क्वेयरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं. मॉड ऑफ a प्लस मॉड बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर. सी दीज आर द स्केलर्स, ये मैग्नीट्यूड से स्केलर्स हैं. तो मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर होगा मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
a dot b equal to mod of a square plus mod of b square plus 2 times mod of a into mod of b। तो ये पूरे स्केलर से, तो यहाँ पे ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी एंड इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए टू भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी एंड ए डॉट बी इज मॉड ए इंटू mod b into cos of theta, theta is the angle between vector a and b, equal to mod a plus mod b। so this cancel, तो यहाँ पे cos of theta कितना आएगा 1, तो थीटा कितना आएगा 0। थीटा 0 है तो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर है तो कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 16 and this is in the last option। now see the next question number 17। see the next question number 17। ये सभी स्टेप्स आपको समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। ये वेक्टर्स नहीं है मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा क्योंकि ये वेक्टर है। सो दिस इज द 16। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। so in the next 17 what we have given in the next question number 17, we have given the a dot I equal to a dot 2i plus j equal to a dot I plus j plus 3k equal to 1। तो a वेक्टर हमें फाइंड आउट करने का है। सो सी द 17 a dot I equal to a dot 2i plus j equal to a dot I plus j प्लस 3k इक्वल टू 1। तो ऐसा कौन सा ए वेक्टर होगा दैट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सो हम इसको ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में आप ए वेक्टर लेके देखिए कौन सा वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, 2i प्लस जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट ए वेक्टर कंसिडर करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो इट इज़ गिवन दैट ए डॉट आई इक्वल टू 1, ए डॉट आई इक्वल टू 1 दिया है। सो ए डॉट आई क्या होगा, सो ए डॉट आई विल बी इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू 1। सीआर अगर हम आइडेंटिटी आई वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो x इंटू 1 x हो जाएगा प्लस y इंटू 0 0 प्लस z इंटू 0 0। सो इट विल बी x। नेक्स्ट कंडीशन इज a डॉट सो यहाँ पे मैं ऐसा ही लिखता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। y दिस इज x इक्वल टू 1। तो a वेक्टर क्या था मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई वेक्टर। ओके, सो दिस इज 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 0। अब देखिए इसके साथ का डॉट प्रोडक्ट से क्या इक्वेशन मिलेगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस वाई इंटू 1 वाई प्लस जेड इंटू 0 0 इक्वल टू 1। अब थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ दिस, तो x इंटू 1 एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई प्लस 3 इंटू जेड 3z इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख दीजिए, 2 तो y कितना मिलेगा -1, x -1 y -1 कैंसिल हो जाएगा, z कितना मिलेगा, z कितना मिलेगा 1/3। तो इसमें रख दीजिए वेक्टर a मिल जाएगा। सो x इज़ 1, सो I वेक्टर, y इज़ -1 माइनस j वेक्टर, z इज़ 1/3 इंटू k वेक्टर। सो इट विल बी 3i माइनस 3j प्लस k by 3। so this is in the last option D। okay, so this is also very simple problem and this was number 17 and now we'll solve the question number 18। see on the board question number 18, all the problems are very important for MST CT exam। so see the question number 18। okay,
सो यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड. ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर. मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन वर, तो हमें थीटा पूछा है. सो ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स यानी मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 1. इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमें दिया है थीटा. एंड इट इज़ गिवन दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन 1. सो मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा. सो मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज लेस देन 1. सो ए डॉट बी कितना होगा यहाँ पे? ए डॉट बी होगा मॉड ए प्लस ए बी कॉस थीटा होगा. तो ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है. 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बिकॉज ए एंड बी आर इक्वल टू 1. सो दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी इज कॉस थीटा लेस देन 1. सो इट इज 2 कॉस थीटा इज 1 1 कैंसल लेस देन -1. तो यहाँ पे कॉस थीटा इज लेस देन -1/2. तो कॉस थीटा अगर लेस देन -1/2 है, सो कॉस थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो कॉस ऑफ 120 इज -1/2. सो कॉस ऑफ थीटा इज लेस देन -1/2, then theta will be greater than 2π/3. But angle between the vectors, any two vectors, is less than 180 degree. So therefore theta will belongs to 2π/3 to π. Greater than 2π/3, लेकिन पाई से ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं हो सकता. So the range of theta is 2π/3 to π. So 2π/3 to π is in the last option D. Theta is less than pi, greater than 2π/3. So this was the problem number 18, very best question. And now we will solve the next question number 19. So see the question number 19. And these are the two lectures specially on the problems on the scalar product, and the next point we will see the cross product. Now it is the time to solve the question number 19. And in this question we have given mod of a plus b1, mod of a minus b c1, mod a 4 है तो mod b कैसा होगा. So this is also very best question. इसमें आपको एक नया फार्मूला मैं दिखाता हूँ. That formula is also very useful. So mod of a plus b कितना है? 1. मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना है? 7. ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए कितना है? 4. ओके, तो हमें पूछा है मॉड बी. तो अब डायरेक्ट फार्मूला में कैसा यूज़ करता हूँ देखिए. मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? सो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा. ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा. यहाँ के बीच की टर्म होगी प्लस 2a डॉट बी, यहाँ की मिडल की टर्म होगी माइनस 2a डॉट बी. सो प्लस 2a डॉट बी माइनस 2a डॉट बी कैंसल. सो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू mod of a square plus mod of b square. So note this formula. This formula is very important. और सेम अगर मैं ऐसा यूज़ करता हूँ mod of a plus mod of b square माइनस mod of a माइनस mod of b square, तो यहाँ पे a square b square कैंसिल हो गए. एंड 2a डॉट b माइनस माइनस प्लस 2a डॉट b, so it will be equal to 4a dot b. So write down these two important results on the dot product. इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ में नहीं लिखा था तो इसको नोट कर लीजिए. अब हमारे काम का फॉर्मूला ये है. तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया है, मॉड दिए हैं सबके, तो बी फाइंड आउट हो सकता है. वी नो दिस, वी नो दिस, वी नो दिस, वी कैन फाइंड दिस. सो दिस इज दिस प्लस दिस स्क्वायर इज दिस equal to 2 times this square is this and this is this. ओके, सो ये हो गया 50/2 यानी 25 इक्वल टू 1 प्लस
मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा, समथिंग रॉन्ग, 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज 16। ओके, ये 16 है क्योंकि मॉड ए कितना है 4, तो ये हो गया 9, तो मॉड ऑफ बी मेरा मिलेगा 3। सो राइट डाउन दिस टू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेट्स। मॉड ऑफ बी इज 3 and the answer to this question is C, third. So this was 19 and now I will solve the next and the last problem number 20, and the problem is very good and the best, last and best problem of this lecture, problems on scalar product for MHTCT. So total we have 3 lectures on the dot product. एक lecture में हमने properties देखे थे स्केलार प्रोडक्ट की, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व अगेन 10 प्रॉब्लम्स. सो टोटल 20 प्रॉब्लम्स. ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी important. So see the next and the last problem number 20 of this lecture of the vector dot product scalar product. mod a है मेरा 2, mod a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, mod of p is 1, एंगल a एंड एंगल b का एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b कितना है π/3. सो आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी. अब a और b का एंगल कैसा निकालते हैं हम, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स थीटा इज गिवन बाय a डॉट b अपॉन a. तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे. we have to find the angle between vector a plus b and a minus b. so let this angle is theta. तो इसका फार्मूला कैसा बनेगा, a और b का एंगल का फार्मूला देखिए a डॉट बी अपॉन ए बी. सो एंगल बिटवीन दिस इज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू a डॉट बी यानी a प्लस बी डॉट ए माइनस बी अपॉन a इंटू बी यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी. तो इसमें हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वी विल गेट थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी माइनस 2a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा. सो ये बनेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन, अब इसको हमको सॉल्व करने का है. सो मॉड ऑफ ए प्लस बी देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, तो अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी. ओके, तो ए स्क्वायर होगा 4, बी स्क्वायर होगा 1 प्लस 2a डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा. तो ए बी कॉस थीटा 2 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कॉस 60 कितना होगा 1/2. सो दिस विल बी 2 विल गेट कैंसल, 4 प्लस 3 कितना होगा 7. अब मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी. तो ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 1 है, माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस ऑफ 60 इज 1/2. सो अगेन दिस 2 कैंसल, 4 प्लस 1 5 माइनस 1 ये कितना बनेगा 3. तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 7, तो ये बनेगा √7. मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर 3, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3. एंड नाउ दिस इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना है 4, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 1. सो द आंसर इज 4 माइनस 1 3/√7 इंटू √3. तो ये बनेगा रूट ऑफ 3/7. 3/√3 is √3. Root of 3/7. So this cos of theta is root of 3/7, and therefore the theta will be equal to cos inverse of
theta will be equal to cos inverse of root of 3/7, which is in the option C. So this was the last problem of this lecture, and the answer to this question is C. So okay students, these were the 20 important problems for the dot product, that is the scalar product for MST CT of the topic vectors. And in the last next lecture we will take cross product, its properties, and again जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के 2 लेक्चर लिए हैं एंड 20 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए, वैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट के भी 20 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. सो प्लीज़ देखते रहिए एंड मज़ा लेते रहिए, हैप्पीली इसको देखिए. यू विल गेट श्योरली बेनिफिट फॉर योर एग्ज़ाम MST CT. So okay students, bye.